Hello and welcome to Whale Capital. This is a video about Bollinger Bands, and I am going to explain to you how you can use Bollinger Bands to take your trades. So, first of all, what are Bollinger Bands? Bollinger Bands are technical indicators developed by John Bollinger. He is the he is the one who invented them. But why do traders use them? They Bollinger Bands help measure volatility. So you must have seen Bollinger Bands how they are. People can take trades based on as you can use the upper and lower band as support and resistances, and it helps you understand how a particular stock or any chart that you're seeing is moving. You can confirm trades using it. We'll see how you can do that in the coming video. So the visual structure, this is the most basic structure of Bollinger Bands, how Bollinger Bands look. So these are the two bands, and this is the moving average. And this calculation for this goes as minus two standard deviations or plus two standard deviations. That is it. That is as simple as that. And the bands move dynamically as the price moves. The plus and minus two standard deviations is how the bands move. So why do traders use Bollinger Bands? You can see there are a lot of reasons. I've mentioned them here, but everything is uh, so you have to look at a lot of things to confirm if the Bollinger Band is confirming things. So you can detect consolidations, you can detect trends, you can detect trend reversals, or you can gauge what the current momentum is, and if a stock is like waiting for an explosive move. You can see all of these things using Bollinger Bands. So I mentioned in the previous this slide that it measures volatility. So what is volatility? Volatility is the measure which measures how much price moves over time. So high volatility you can say is when price moves fast and high volatility is when the prices move very fast, and that is when you see trends, uptrend or lower trend, downtrend, and low volatility is when the stock is consolidating. This is basically what is volatility in trading. So these are the bands. So when the bands are big, when the standard deviations are higher, you can say that is when the stock or particular chart is in high volatility zone. And when the bands are when the bands get tight, that is where the low volatility zones are. We use a similar concept in volatility contraction patterns. This is where the consolidation is happening, and it tells us that the stock is ready to give a big move. That similar concept applies over here as well. So what is the relationship between Bollinger Bands and volatility? When the volatility increases, band expands, as I said, this, and when the volatility falls, the bands contract, as I told here. So as traders, what should we watch? Band width is market activity, wider bands is more volatility, and narrow bands is less volatility. So how exactly does Bollinger Bands work? This is the formula that I was talking about. So this middle band is a 20-day moving average. You can change this, but uh, if you look at it, it is a 20-day moving average, and this is 20-day moving average plus two standard deviations, and lower band is 20-day moving average minus two standard deviations. This is exactly what it is telling here. So you don't need to know these things. The chart will automatically give it to you. Now, what is the standard deviation? Standard deviation measures how far a price moves from its average. So the 20-day moving average. And uh, what happens here is when the standard deviation is low, the bands contract, and when the standard deviation is high, the bands are bigger. So higher standard deviation means the price move the more away from the average, which is the 20-day moving average, which we have set. So this is exactly that. When there is more deviation, there is more volatility. When there is low volatility, there is less deviation. And so this is the biggest mistake
which people make while using Bollinger Bands is they use Bollinger Bands as support and resistances on their own. So what they think is when the price hits the lower Bollinger Band, that is your support and you should buy from there. And when the price is going up and hits the upper band, तो वहां पे अगर ऊपर जब जाएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा तो उसको ऐसा नहीं कि वहां पे बेच देना है। ये नहीं होता है बोलिंजर बैंड का। तो ये बहुत बड़ा एक मिस्टेक है। क्या करना है आपको बोलिंजर बैंड यूज करते समय, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस वो एक्ट कर सकते हैं, बट तुमको उसके साथ बाकी भी देखना है कि वो पिछले ट्रेंड में भी कैसा था, पीछे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेम लेवल पे है क्या, और ऊपर के साइड पे भी कोई सेम लेवल पे रेजिस्टेंस है या है क्या। और उसके साथ अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अगर उसके साथ वॉल्यूम ड्राइव हुआ है और फिर जब नीचे वाले बैंड पे अगर बॉलिंजर बैंड पे है, वहां से ऊपर जब जाता है तो वो उसका उसके साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्या। तो अगर ये दो तीन चीज़ों के साथ अगर ये हो रहा है तो फिर ऐसे हम बोल सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड इज वर्किंग एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अलोन सिर्फ उसको अकेले में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानना है, दिस इज रॉन्ग। ओके, सो एग्जैक्टली, बॉलिंजर बैंड्स आर नॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। वो तुमको बस बताते हैं कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन उसका प्रोबेबिलिटी क्या है इन एरियाज में आने का और इन यहाँ से टर्न होने का और ट्रेंड चेंज होने का। अनदर मिस्टेक, एक और जो मिस्टेक है वो क्या होता है कि मिडल बैंड जो होता है, काफी लोग ये सोचते हैं कि मिडल बैंड भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। कभी कभी प्राइस, कभी कभी ये यूज होता है, कभी कभी मिडल बैंड के ऊपर आके वहां से ऊपर चले जाता है या वो उधर आके वहां से नीचे चले जाता है। बट काफी बार ऐसे होता है कि उसको सीधा तोड़ के चले जाता है। और इस जगह पे कॉन्टेक्स्ट मैटर, एज आई सेड, कि दो तीन चीजें और भी उसके साथ होनी चाहिए। उसके साथ तुम वॉल्यूम देखो, उसके साथ तुम पास्ट रेजिस्टेंसेस देखो, पास्ट लेवल्स देखो, स्विंग हाई स्विंग लोज देखो। अब ये अ, सबसे ज्यादा लोगों को क्या चाहिए होता है, कोई तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता दे इसी इंडिकेटर के साथ। तो बोलिंजर बैंड के लिए ये एक काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है जो मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग के दिनों में यूज की थी। उसे कहते हैं फ्री बार स्ट्रैटेजी। सो फ्री बार क्या होता है, तुम्हारा जो बोलिंजर बैंड है, कोई स्टॉक जा रहा है और तुम्हारा बोलिंजर बैंड के ऊपर या नीचे के साइड पे, दोनों के साइड पे उसका क्लोज और हाई या क्लोज और लो ये बाहर होना चाहिए, बोलिंजर बैंड के बाहर। उसे हम फ्री बार कहते हैं। उसका विक भी बाहर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्री बार जो रहता है वो क्या तुमको बताता है, इसका मतलब है कि जो स्टॉक करंटली आप देख रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी है, बाइंग सेलिंग हो रही है, और जिस डायरेक्शन में हो रही है उस डायरेक्शन वाले प्लेयर ज़्यादा है। तो ऊपर जा रहा है तो बुल स्ट्रांग है, नीचे जा रहा है तो बेयर स्ट्रांग है। तो ये देखो, ये ये बैंड है तुम्हारा, और स्टॉक में इतना फास्ट मोमेंटम आया है कि यहाँ से बाहर आया, वॉलेटिलिटी इज़ वेरी हाई। यहाँ इतना हाई वॉलेटिलिटी है इसलिए ये बाहर आता है, और इसी इसी कैंडल को हम फ्री बार कहते हैं। बट ऐसी जगह पे क्या होता है, वोलेटिलिटी एकदम स्विच भी मारता है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा प्राइस आता है और स्टॉक ऊपर जा रहा है तो काफी बार होता है जो बाहर रहता है, काफी लोगों को उस स्टॉक में से बाहर निकलना है कि 4-5 टका एक्स्ट्रा मिल गया, निकल लो इसमें से, प्रॉफिट बुकिंग होता है, इसलिए वहां से वापस नीचे आता है। तो अनयूजुअल वॉलेटिलिटी जहाँ होती है वहां पे ट्रेड रिवर्स होने का चांस भी हाई रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, बायर्स जैसे मैं बोला प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो उसमें वो थक जाते हैं। तो हर प्री बार ये नहीं है कि रिवर्सल हो सकता है, बट देर इज अ हाई चांस। ट्रेडिंग में हमेशा गारंटी नहीं होती है, हाई चांस होता है, हाई प्रोबेबिलिटी होता है। तो कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं, कोई फ्री बार को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसके साथ प्राइस एक्शन देखो, पिछले हाई हाई लोज देखो, स्विंग हाई स्विंग लो देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस देखो, मार्केट स्ट्रक्चर देखो, तुम्हारा कैंडलस्टिक पैटर्न कोई बड़ा वाला बन रहा है क्या वो देखो, उसके साथ कोई वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कुछ हो रहा है वो देखो। और ब्लाइंडली अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, बोलिंजर बैंड्स को जैसे ब्लाइंडली नहीं देना है अकेले में, वैसे उसके साथ अलग अलग अगर ये पैरामीटर्स भी अगर सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। तो ऐसे टाइम पे ही बाय करना है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। देखो, यहाँ से आया, यहाँ मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है वो। अ, ये तुमको मार्क करना है दोनों। यहाँ से आया,
इसको नीचे क्लोज होने देना है, नेक्स्ट डे देखना है तुमको, और फिर इस पॉइंट पे तुमको बाय करना है, बताऊंगा। सो एक और स्ट्रैटेजी है बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। अभी ये स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया है बॉलिंजर बैंड्स यूज़ करते समय, और इसका प्रोबेबिलिटी भी हाई होता है क्योंकि ये सेटअप बहुत कम बार बनता है, बट जब बनता है तो उसका प्रोबेबिलिटी हाई। सो व्हेन बैंड्स बिकम वेरी टाइट, जैसे वीसीपी में मैंने बताया था, मैं इसका वीडियो चाहे तो इसमें लिंक कर दूंगा। वॉलेटिलिटी ड्रॉप होता है, तुम्हारा वॉल्यूम ड्राई हो जाता है, और क्या होता है वहाँ इस टाइम पे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बाय करते रहते हैं, छोटे छोटे क्वांटिटीज में बाय करते रहते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सप्लाई डिमांड है। तो ऐसे टाइम पे एक पॉइंट आता है, उसके बाद जब स्टॉक फटता है तो वो जोर से फटता है। देखो, ये एक स्टॉक है, यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी थी, हाई वॉलेटिलिटी जोन है ये, और वहां से फिर नीचे आया, उसका वॉलेटिलिटी कम हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो गया, तो और ये लो वॉलेटिलिटी जोन है। और यहाँ पे क्या होता है, वीसीपी में भी हमने देखा था ऐसे जगह पे वो कंसोलिडेट करेगा, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वो ऐड करेंगे, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो फटता है, और यहाँ से वो और ऊपर जाएगा। सो ये एक सेटअप बनता है। और अभी बॉलिंजर बैंड्स क्या होता है, मैंने जैसे बताया था वो 20 डे मूविंग एवरेज है, तो उसमें भी तुम सेट कर सकते हो कि कौन सा मूविंग एवरेज होता है, बट उससे ज़्यादा लेंथ जो होता है तुमको, पिछले कितने दिनों का तुमको देना है वही है, 10 डे लेंथ और 10 पीरियड लेंथ, और स्टैंडर्ड डिविएशन 1.5 जो सेटिंग है, ये सेटिंग याद रखना अगर तुम स्कैल्पिंग करते हो या शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हो या इंटरडे करते हो, इसके लिए। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो और या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, उसके लिए लेंथ 50 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 2.5 वर्क्स बेस्ट। ये हिस्टोरिकली मैं काफ़ी जगह पे पढ़ा भी है, एंड मैंने जब कुछ स्टॉक पे लगा के देखा, तो यस दिस वर्क्स। अभी कॉन्टेक्स्ट मैटर क्यों करता है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अ, कोई भी इंडिकेटर है, वो एक तो लैगिंग इंडिकेटर होता है, और वो जब भी तुम यूज़ करते हो तो उसमें प्रॉब्लम आता ही है क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी लो रहता है कोई भी इसका। अगर तुम वॉल्यूम नहीं यूज़ करोगे उसके साथ, मार्केट स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करोगे, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर तुम देखोगे नहीं, तो, तो अकेला इंडिकेटर आपको प्रॉफिट नहीं देगा, उसके साथ कोई भी रिवर्सल या ट्रेंड कैच करने के लिए तुमको उसके साथ और दो तीन चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। ये मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, और वो याद रखना है। अभी केल्टनर चैनल्स जो है, आप काफ़ी सिमिलर होता है टू बॉलिंजर बैंड्स, मैंने देखा है। मैं कभी इतना यूज़ नहीं करता हूँ, बट इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ये एवरेज ट्रू रेंज जो एटीआर यहाँ पे लिखा है, एवरेज ट्रू रेंज को यूज़ करता है। और बॉलिंजर बैंड्स कैसा था, ऊपर नीचे काफ़ी फास्ट मूव करता है, तो उससे थोड़ा कम मूव होता है, ये स्मूथली मूव होता है। इफ़ यू वांट, यू कैन गो चेक आउट केल्टनर चैनल्स। मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ तो इतना नहीं बताता हूँ, बट मैंने अब इसमें डाला है, ये पीपीटी में डाला है क्योंकि पता होना चाहिए। अभी सबसे बड़ा टेक अवे इसमें से क्या है, बॉलिंजर बैंड जो होते हैं वो तुमको कितना स्टॉक का मूवमेंट हो रहा है वो बताने के लिए हेल्प करते हैं। जो रिवर्सल्स होते हैं, पोटेंशियल रिवर्सल्स होते हैं, वो तुमको एक स्लाइट आइडिया देने के लिए अच्छा है। उसके साथ जैसे कि मैंने बोला कि दो तीन चीज़ें और देखो, ये तुमको देखना है, जो ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, जहाँ पे फ्री बार जैसे बनता है, जो जो बनता है, ऐसे जगह पे भी तुमको आइडेंटिफाई करने के लिए इजी होता है। और कंसोलिडेशन जैसे लो वोलेटिलिटी जोन होता है, वहाँ पे कंसोलिडेशन होते समय भी तुमको वो आइडिया देगा कि अगर लो वोलेटिलिटी है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, और तुम्हारा टाइमिंग के लिए हेल्प करता है कि कहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है, और जो ट्रेंड में जा रहा है उसके ऑपोजिट तुम ट्रेड ना करो, बस तुमको वो देखने के लिए हेल्प करता है। अभी फाइनल थॉट ये अगेन, कोई भी इंडिकेटर हो, इट इज़ नॉट मैजिक, वो एक फ्रेमवर्क है, तुमको उसके साथ प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, प्रीवियस हाईज लोज, रेजिस्टेंसेस, प्रीवियस हाई रेजिस्टेंसेस, सपोर्ट, ये सब देख के एक मेंटल मॉडल बना के तुमको ये सोचना है कि बोलिंजर बैंड्स के साथ क्या वो प्राइस मूव करेगा, और अगर करेगा देन यू कैन यूज इट इन योर ट्रेडिंग। तो इंडिकेटर, हर एक इंडिकेटर में जब भी बोलता हूँ, हर एक वीडियो में मैं ये बोलता हूँ कि इंडिकेटर अकेले यूज मत करो उसके साथ। और ये इसलिए मैं ये बोल्ड किया है, कंबाइन मल्टीपल फैक्टर्स।
अगर तुम मल्टीपल फैक्टर्स कंबाइन नहीं करोगे तो आपके ट्रेड का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगेन दिस वाज अनमोल बापट एंड यू आर वाचिंग वेल कैपिटल। अगर आपको ये पसंद आया होगा वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।